टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र जी आज हर साल की बात ही इस बार भी केक कटिंग की। केक कटिंग एक परंपरा है, उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद जो प्रेस से बात हुआ वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमशेदपुर के लिए और टाटा ग्रुप या टाटा स्टील में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन होता है, एमडी साहब से सवाल जवाब होता है। So much that let me treat you a little more. आप भी तो खाइए सर। अरे you are working for all of us, but it takes something. Zimedar Nagrik, and I think the requirement of Zimedar Nagrik is much more now than it was earlier. Aspirations are very high, and at the same time, we need to all jointly look at what all can be done to improve the quality of life at Jamshedpur. Wish you all and your families a very happy new year. It's from a Tata Steel perspective, it's been a challenging year, as was 2023 too. But I think that's the world we live in. I think we are in an industry which is geopolitically very relevant, which is very global. So what happens in one part of the world because of the slowdown in China, the recovery has not yet happened. We were hopeful last year in January, we are hopeful this year in January. We were actually hopeful the year before last. So that's when China removed the restrictions after COVID. That was 2023 January. And 23 was tough, 24 was tough, and now we are in 2025. And I think it has had an impact on steel margins globally. So most steel companies in the world are actually struggling to make money. And it's only that in India, because there is a growth in demand for steel, Tata Steel is well positioned. Our cost competitiveness ensures that we are profitable, at least in India. But that profit has come down, and obviously our concern is more about how permanent is this change in China, how long will it last, will there be actions taken to reduce exports, will there be actions taken in India to protect the industry from unfair imports, because this is an industry which has a lot of potential. I've said this before, some of the richest parts of the country below the ground are actually some of the poorest parts of the country above the ground. And that opportunity to leverage the mineral riches that we have in, let's say, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and many other states, and translate that into industry and value addition, which can create jobs, which can create wealth above the ground, is an opportunity which we should not miss. And the demand for steel in India is growing. But the problem which happens is if the margin compression is there, if imports is available cheaper, then there is no incentive to invest to grow. And I think that's a challenge which we've conveyed to the government, and the government is working on it. Overall, Tata Steel, the big event for Tata Steel in India has been the commissioning of the blast furnace in Kalinganagar. It's the largest blast furnace in India. A lot of work has been done by our teams to make sure that it's commissioned successfully and safely. We've also commissioned all the other facilities in Kalinganagar, so Kalinganagar becomes an 8 million ton plant. In the Jamshedpur region, we will have the Combi mill, which is in ISWP area, coming up in the next few months. I think that was an investment we made about a year and a half back. So these are, and of course we continue to invest within the plant to, not only address debottlenecking issues, but also to make it greener and cleaner. So going forward, as Chanakya said, of course Tata Steel will continue to do what it needs to do, but it also expects that the citizens will understand the challenges which Tata Steel is going through, the sacrifices that the Tata Steel employees are making to make sure that Tata Steel continues to do well. And so obviously the expectations from the community needs to factor in these issues as well, right? So obviously we will do what we need to do, we will do the best that we can do, but obviously we need to also be conscious of the challenges the industry is facing. Because, as Chanakya said, one of the big issues we have is in our other plants, whether it's Kalinganagar or whether it is Meramandali or Nilachal, etc. We have nothing compared to what we have here. So the employees there feel that we are not treating them the same way that we are treating our employees in Jamshedpur, because they have all the facilities. And it's not that we need to run cities there or townships there.
8% ग्रोथ है स्टील कंजम्पशन में, तो वो अच्छा है। पर यह है कि चाइना का जो स्थिति है बहुत खराब है और उसका असर ग्लोबली सब पर पड़ रहा है। तो आप देखिए तो बाकी जो देश है, जो यूएसए है या कनाडा है या यूरोप है, सब लोग ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया है टू टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि चाइना का जो स्टील सब जगह जा रहा है वो ये नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वो प्राइस में वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और वो लोग बिना प्रॉफिट भी प्रोडक्शन कर सकता है, सेल कर सकता है, वैसे हम लोग तो इंडस्ट्री नहीं चला सकते। तो इसीलिए हम लोग भी रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट की तरफ कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में स्टील इंडस्ट्री सबसे आगे है। आप देखिए देश में तो बिटवीन, हम सिर्फ टाटा स्टील का बात नहीं कर रहे, बाकी जो हम लोग का अदर स्टील कंपनीज है, सब लोग मिल के देखिए तो ऑलमोस्ट 40-50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल हम लोग कर रहे हैं कुल मिला के। टाटा स्टील का 10,000 करोड़ था लास्ट ईयर, बाकी लोग का भी 10,000 करोड़ का है। तो ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और देश में आयरन ओर है, देश में मार्केट है, तो वैल्यू एडिशन करने से देश के लिए अच्छा है, जॉब्स भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए ये इस पर ध्यान देना चाहिए, ये हम लोग गवर्नमेंट से बोला है। तो देखते हैं कुछ एक्शन होगा या नहीं। अभी सेफ गार्ड ड्यूटी का कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ इनपुट्स मांगा है पब्लिक से, और बजट में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो स्थिति ये है। तो टाटा स्टील में भी हम लोग को देखना है, ये तो पहली बार नहीं है, हम लोग भी बहुत बार पहले भी ऐसे स्थिति हम लोग फेस किया है। 2015-16 में भी ये स्थिति था, 2008 में भी ये स्थिति था, 90s में भी, 98-99 में भी ये स्थिति हम लोग देखा है। तो उस टाइम में हम अपने एम्प्लॉय से अपील करते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, और आइडियाज़ आता है, हम लोग भी कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो वही किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जितना कम एक्शन हम लोग ले सकते हैं हम लोग ले लेंगे, पर कंपनी का भी ख्याल रखना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल होने से हम लोग कितना का मार्जिन है स्टेट हम नहीं बोल सकते ना, हम इंडस्ट्री के तरफ से वी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट इफ दे कैन बी सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का मतलब यह है कि जब इम्पोर्ट्स आता है, चीप इम्पोर्ट्स विच डैमेजेस द इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट के पावर में है सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज करने के लिए। तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू हुआ है। दूसरा है कि जो स्टील का कस्टम्स ड्यूटी है उस पर भी ध्यान देने को बोला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनका ये हेसिटेशन है कि स्टील का दाम बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ेगा, उसका असर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री पर पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है इस पर डिसीजन लेना का, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा, बाकी इंडस्ट्री के लिए इट विल बी डिसएडवांटेज। तो इसीलिए ये सब में टाइम लगता है। अभी जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो तो कंप्लीट करेंगे, पर अभी अब अगर हमको नया कुछ करना है तो हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। जमशेदपुर में अभी मेनली प्लांट के अंदर तो हर साल हम लोग का ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। अभी कॉम्बी मिल जो है ISWP वो एरिया में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जमशेदपुर में ये सब, क्योंकि जमशेदपुर में जैसे हम लास्ट टाइम भी बोला 11 मिलियन तो वही रहेगा, क्योंकि एक्सपैंड करने का चांस नहीं है, जगह नहीं है। पर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट, अभी ये साल भी हम लोग का जी फंड्स का रीलर्निंग चलेगा, तो उससे थोड़ा कैपेसिटी बढ़ेगा जी फंड्स का, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो मेंटेनेंस का इन्वेस्टमेंट है, वो सब करते रहेगा, और एमिशंस हम लोग कम कर रहे हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट्स करते रहेगा। सर टिन प्लेट का इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो गया है सर। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो गया मतलब टिन प्लेट में जो 2000 प्लांट था सर, हाँ, उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग झारखंड में नहीं मिला, जमशेदपुर में नहीं मिला सर। वहाँ नहीं हुआ, वही होगा। टिनप्लेट का इंस्पेक्शन टिनप्लेट में ही होगा, पर टाइम लगा एनवायरमेंट क्लियरेंस में, शायद ऑलमोस्ट 2 साल लगा, इसीलिए वो डिले। वहाँ उन्होंने अपने स्टार्टिंग भाषण में भी कहा कि 2023, 2024, 2025 बहुत टफ टाइम था स्टील इंडस्ट्री के लिए, और अभी 2025 और क्रिटिकल टाइम है। कंपनी को यह बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में टफ कंपटीशन है, फर्स्ट। दूसरा चीज की चाइना बहुत अधिक डिस्टर्ब कर रहा है स्टील इंडस्ट्री को। एडी लाइफ की टीम ने जो सवाल पूछा, टिनप्लेट कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका ओपनिंग हुआ, उसके हेमंत सोरेन जी आए थे उसका प्लांट का ओपनिंग करने के लिए, क्या वह इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो गया है? हर साल की भांति इस बार भी उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पब्लिक हित में वह इन्वेस्टमेंट टाटा स्टील करते ही रहेगा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जमशेदपुर को बोला कि आप हेलमेट सेफ्टी का पूरा पालन करिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम को सभी को धन्यवाद।